Good morning, everyone. In previous class, we have studied about the forces between two parallel current carrying conductors. In that case, we have studied about two conductors having the currents in the same direction. This was our previous figure in which current was flowing in same direction in both the conductors. So our the final expression was the force per unit length on the second wire was mu naught I1 I2 2 pi r, mu naught I1 I2 by 2 pi r. Alright, so today we are going to see what happens when current flows in opposite direction in these two conductors. So first consider first conductor, this one. Consider this is an infinite conductor of length L. L is very large distance. So if current is flowing from lower side, bottom side to upper side, so it is I1 current. We have considered it I1 like previous figure. Just because this current is flowing, this will create a magnetic field which will be concentric circles. So the direction of that magnetic field will be concentric circles. The direction will be given by the law, which is right hand thumb rule. So in this case, thumb will be the direction of current, point it upwards. So these curled finger will be the direction of magnetic field. So it is circular but perpendicular to the plane of the paper. So it is clockwise. So clockwise, make this will be our magnetic field in clockwise direction due to this current I1, and the value of magnetic field B, if I say it is B1, here it will be mu naught I by 2 pi r. This was the magnetic field created by an infinitely long wire at the distance r. Alright, carrying current I. तो यहाँ पे अपने केस में क्या हो जाएगा, mu naught I1 by 2 pi r. Alright, so this is the magnetic field created by the first wire. Now as we consider another wire just in the vicinity of the first wire, so consider this wire at distance, how much, r distance from this first wire. Obviously this second wire carrying current I2, I am considering the direction of current in this wire just opposite to the direction of this wire. So this current is downward and its value is I2. Alright, so this I2 will be downwards, and just because this I2 will also create magnetic field, so the magnetic field created by I2 will also be concentric circle, and at distance r it will be B2 is equals to mu naught I2 by 2 pi r. It means this wire will create magnetic field for this wire, and this wire create its own magnetic field for the first wire. So like previous content, we will see that in this wire, the second wire, some magnetic field is also applied due to first wire, and current is flowing I2. So this wire, second wire will feel some kind of force, and that force will be governed by F is equals to ILB sin theta. So the force on first wire, force on second wire F2 will be is equals to ILB. I, which one? The current which is flowing in the second wire, that is I2. Length, we have considered both length as small l, so we will consider L, and B, the magnetic field of the first wire acting on the second wire. So it is this one, and this one is B1. So B1 will acting on this, and it is into the plane of the paper. So IL B2 and sin what? Sin theta. Now as sin theta, it is just because magnetic field is perpendicular to the wire, so it is 90 degree, but the direction of this F2 is mainly we have to consider.
So this F2, in this case F2 will be towards the first wire. Now here we have to apply which law for second for this force? Obviously left hand Fleming's rule. So this line, this finger will be pointed towards the into the plane of the paper. So it is this one. This finger will be directed towards the current, so it is downward like this. So obviously the thumb will show in rightward direction. So the current, so the force F2 will be in this direction, F2, away from the first wire. Alright, just because the current is inverted, so our this direction, the F2 direction is changed. Alright, so this will be F2, and F2 is again this perpendicular to this magnetic field B1. Alright, now consider, if I want to consider the force on the first wire, just because we have calculated force on the second wire due to first wire. Now we will consider force on the first wire due to second wire. See, second wire is again प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसमें भी तो तार बह रही है, करंट बह रही है. सेकेंड वायर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट I2 by 2 pi r. फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड वॉज म्यू नॉट I1 by 2 pi r just because it is created by the first wire. So it is B2 म्यू नॉट I2 by 2 pi r. This magnetic field, just because the current is downward, we will apply thumb rule in downward direction. नीचे की ओर इस तरह से हम करते हैं अंगूठा अपना, तो हमारा जो फिंगर है दैट विल बी टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये इस वाले डायरेक्शन का उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन हो गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यहाँ से आप देखेंगे तो बाहर की ओर जाता दिखेगा, आपकी तरफ आ रहा है. और यहाँ को आप देखते हैं तो ये इस वाले तार पे ये अंदर को जाता दिखेगा. ऑब्वियसली यहाँ पे बाहर आ रहा है तो यहाँ पे अंदर जा रहा है. यानी फर्स्ट वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फील हो रहा है, ये B2 फर्स्ट वाले वायर पे, सेकंड वाले कारण B2 ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन किधर की तरफ, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया. अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स निकालें. तो फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स सेकंड वाले फील्ड के कारण, इसको मैंने नाम दिया F1. ठीक है ना, F1 क्या होगा, जो कि इसके कारण जनरेटेड है, इस वाले फील्ड के कारण. और करंट ये वाली है, यानी करंट कौन सी लेनी है, ILB साइन थीटा में, पहले वाले तार में जो करंट बह रही है I1. L क्या लेना है, L तो कोई भी ले लीजिए, लेंथ है ना, जो दोनों ही L है और L दोनों ही इनफाइनाइट लेंथ लिया गया. और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वाला यहाँ काम कर रहा है, तो B2. और साइन, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है वायर के, वायर ऐसे प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 डिग्री. ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम पाते हैं F2 ये है, ध्यान दीजिएगा, और F1 ये है. मैं दोनों को लिख लेता हूँ. ये I2 L, ये B फर्स्ट होना चाहिए था, यहाँ पे B1. ठीक है ना, I2 L B1. तो देखिए F2 जो हमने देखा वो पाया I2 L B1 मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और साइन 90 डिग्री. ठीक है ना, और F1 यानी जो पहले वाले पर लगा दूसरे वाले के कारण फोर्स I1 L B2 साइन 90 डिग्री, कोई इशू नहीं है. अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो F2 by L चाहते हैं हम, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दी सेकेंड वायर F2 by L. सो इट इज़ I2, B1 कितना था, म्यू नॉट I1 by 2 pi r, क्योंकि r दूरी पे हैं दोनों वायर, और साइन 91 हो गया. इसी तरह F1 पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा I1 L, सॉरी L तो उधर चला गया, म्यू नॉट I2 by 2 pi r, कोई इशू नहीं है, और ये 1 हो गया. अब आप देखते हैं दोनों जगह ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi r, एंड दिस विल बी म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi r. सो द मैग्नीट्यूड इज सेम फॉर बोथ दी अरेंजमेंट्स, मतलब फॉर बोथ दी फोर्सेस. ये मतलब जितना फोर्स फर्स्ट वाला सेकंड वायर पे लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड वायर फर्स्ट वायर पे लगा रहा है. ठीक है, ये तो हमारा कंक्लूजन होता है. बट द डायरेक्शन इज चेंज्ड. ठीक है, मतलब जब
यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये चूंकि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, आप इसको तुरंत लेफ्ट हैंड लगाइए, इसको अंदर करिए, करंट को नीचे, ये करंट ऊपर है तो करंट को ऊपर करिए तो फोर्स बाहर की ओर अंगूठा चला गया, यानी F2 किधर लगेगा, ये होगा, ये F1 किधर लगेगा, F1 लेफ्ट की तरफ, F2 किधर लगेगा, राइट की तरफ, यानी ये इस बार दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। पिछली बार दोनों एक दूसरे की तरफ अप्लाई थे, यानी ये इस पे F2 फोर्स लगाता तो ये इस पे इधर को F1 फोर्स लगता, इस बार दोनों बाहर की तरफ, यानी ये एक एट्रैक्टिव केस है जब दोनों ही क्या हो, सेम डायरेक्शन की करंट हो, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन की केस करंट हो तो रिपल्सिव केस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्स फॉर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। नाउ वी विल कम टू definition of 1 ampere which is derived from this derivation. So definition of 1 ampere can be taken from this expression. 1 ampere is that value of steady current which on flowing in each of the two parallel infinitely long conductors of negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter from each other produces between them a forces of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। ये डेफिनेशन बनी कैसे उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, ये एक्सप्रेशन था। अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, I1 और I2 दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ले लें, 1 एम्पेयर की करंट दोनों वायर्स में फ्लो हो रही है। अगर हम दोनों के बीच की दूरी वायर की 1 मीटर कर दें, और एंगल तो आपको पता है तार और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल दोनों ही केस में 90 डिग्री है, ठीक है, तो इतना करने पे फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 1 रख दिया, R की वैल्यू 1 रख दिया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई में म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7, है ना, 4 पाई इंटू 10 पावर -7 होती है म्यू नॉट की वैल्यू, और ये कितना होता है 2 पाई। तो ये जो नंबर आया ये कितना आया 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये वैल्यू कितनी हो गई, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो यही वो नंबर लिखा हुआ है जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब हम फिर से डेफिनेशन एक बार रिपीट करते हैं। 1 ampere is that value of steady current which on flowing in each of the two parallel infinitely long conductors of negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter from each other produces between them a force of 2 into 10 power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। ऑब्वियसली ये जो स्मॉल f था इसको मुझे लिखना चाहिए था स्मॉल f/L, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ था, ठीक है ना। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन है, हर बार आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन भी आ जाती। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी विल सी हाउ अ मोटर वर्क्स, ठीक है, जो भी हमने 10th में पढ़ा था ये उसी का ही थ्योरी बैकग्राउंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक कॉइल है, वायर का कॉइल है, तो उसको समझिएगा कैसे है। कॉपर का वायर लिया, उसको चौकोर ऐसा लूप बना लिया, जैसे विंडो का फ्रेम होता है उस टाइप का तार लेके उसको कॉपर का वाइंड कर लिया, ऐसे चौकोर बना लिया। उसमें यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत छोटी करंट, बहुत छोटे स्पेस से यहाँ पे ये दोनों टच नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट टच मान लिया जाता है, ठीक है। तो करंट ये फ्लो कर रही है। मान लीजिए I करंट इसमें फ्लो कर रही है, P Q R S इस लूप का नाम रख दिया।
इस लूप की लेंथ विड्थ देख लेते हैं। तो लेंथ ये इसकी विड्थ जो है ये a यूनिट चौड़ी है और इसकी हाइट जो है दैट इज b यूनिट्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये एक लूप तो है लेकिन ये किसी प्लेन में होगा। जैसे आप अगर कोई मान लीजिए आपने चूड़ी लिया तो चूड़ी का कुछ अपना खुद का प्लेन होता है जिसमें वो सर्किल फॉर्म होता है। इसी तरह ये एक स्क्वायर लूप है, इसका भी अपना एक प्लेन है जो कि दिख रहा है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि अभी के केस में आपके 90 डिग्री पे रखा हुआ है इस तार के परपेंडिकुलर। अब हमने क्या पाया कि ये एक वायर है और इसका अपना प्लेन ये PQRS प्लेन है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाली जो दिशा होगी, मान लीजिए इसको हम ऐसे बांध दें कि इसको ऐसे ऊंचाई से ऐसे जोड़ के हम इसको 90 ऐसे रोटेट करा सकते हैं। हम इसको इस दिशा में ऐसे रोटेट करा सकते हैं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बीच में गई है और ये ऐसे घूम सकता है इस तरह से। ठीक है ना, अभी ये इस तरह है, या ऐसे ऐसे घूम सकता है। तो ये इसका रोटेशनल प्लेन हो गया, रोटेशनल एक्सिस हो गई। हमने क्या किया, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा, नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेट के बीच में रख दिया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि इस प्लेन का, ये जो PQRS प्लेन है, इसका एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल यानी इसके परपेंडिकुलर वाली एक डायरेक्शन। जैसा कि हम लोग एरिया वेक्टर निकालते हैं किसी भी प्लेन का, तो मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका वेक्टर जो एरिया वेक्टर होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। ठीक है, जैसे किसी कॉपी के ऊपर आप 90 डिग्री पे कोई पेन रख के जो आपको जो पेन की दिशा होगी, जैसे मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, तो दिस इज द 90 डिग्री टू दिस प्लेन, सो दिस इज द एरिया वेक्टर। इसी तरह इस प्लेन का एरिया वेक्टर चाहे इधर से हम 90 डिग्री बना लें चाहे इधर से बना लें, ये 90 डिग्री पे ये मैंने शो कर दिया n, जो कि नॉर्मल टू दिस PQRS है। ठीक है, अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए किसी भी समय, किसी निश्चित समय पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आप खुद ही सोच पा रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो ये ऐसे ऐसे लाइन खींची होगी पैरेलल खूब सारी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, आप ऐसे बना सकते हैं। तो किसी भी समय मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये B है। B से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। अब आप समझ लीजिए ये नॉर्मल, जैसे जैसे प्लेन घूमेगा ये नॉर्मल भी मूव करेगा और नॉर्मल ऐसे ऐसे चक्कर खाएगा, है ना, अपनी जगह पे। यहाँ वाले पे भी तो नॉर्मल इसी दिशा में होगा, यहाँ पे भी, हर पॉइंट पे हम नॉर्मल ले सकते हैं प्लेन के किसी भी। हर बार नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है इस दिशा में, तो मैग्नेटिक फील्ड से अलग अलग एंगल बनाएगा ये नॉर्मल। जैसे जैसे प्लेन घूमेगा वैसे वैसे प्लेन का 90 डिग्री वाला हिस्सा घूमेगा। जैसे मान लीजिए अगर मेरी उंगली में ये 90 डिग्री है, जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ वैसे वैसे ये नोक इसकी आपकी तरफ जा रही है, फिर ये पीछे आ रही, तो यही आपका 90 डिग्री है। ये एंगल हमने थीटा मान लिया कि ये वेरिएबल थीटा। अब समझिए कि यहाँ पे हमारे पास चूँकि एक लूप है, इसमें 4 अलग अलग साइड्स हैं, हर साइड को हमें अलग स्टडी करना। अब समझिए कि ये वाला जो साइड है इसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो इस तार पे, क्योंकि ये तार मैग्नेटिक फील्ड में करंट बह रही है, तो इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। ज़रा समझते हैं, अभी के लिए ऐसे ही फिक्स है, एकदम ऐसे रुका हुआ है। अब आप ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मैंने फिंगर को, लेफ्ट हैंड की फिंगर को ऐसे पॉइंट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नॉर्थ टू साउथ। फिर उसके बाद मैंने करंट की दिशा के लिए इस अपनी उंगली को क्या किया, 90 डिग्री पे ले गया उधर। तो देखिए ये फील्ड की दिशा, ये करंट की दिशा, तो मेरा अंगूठा किधर चला गया, डाउनवर्ड चला गया। तो इसका मतलब ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये अंदर डाउनवर्ड की तरफ F है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में ही, हमारे इसी प्लेन में। तो दिख रहा है ना, ये फोर्स कौन सा, PQ पे लगने वाला फोर्स। इसी तरह जरा इस बारे में सोचिए, इस वाले में, इसमें करंट ऊपर से नीचे है, यानी इसी करंट में जो मैं ऐसे ले जा रहा था, नीचे से ऊपर मैंने करंट की थी। इस वाले केस में जब आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ना बदलते हुए हमें करंट की दिशा नीचे करनी पड़ेगी। तो अंगूठा मेरा ऊपर आ गया, यानी फोर्स हमारा किधर काम कर रहा है,
ये ऊपर की तरफ हमारी तरफ, अब हम हमारी तरफ तो दिखा नहीं सकते तो हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बाहर की तरफ काम कर रहा है, और फील्ड तो उधर ही रहने वाला है तो फील्ड उधर ही बनाया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, दोनों समझ रहे हैं। जैसे हम लोग 10th क्लास में मोटर पढ़ते थे, सेम वैसा ही है, यानी एक फोर्स उधर काम किया, एक फोर्स इधर काम किया। अब समझिएगा कि इनके बीच में दूरी कितनी है, ए दूरी है, ये तो रहेगी। इस वाली और इस वाली एक्सिस के बारे में समझते हैं। पी आर, ये क्यू आर एक्सिस, देखिए क्यू आर जो एक्सिस है उसमें फोर्स कैसा है, ये करंट की दिशा, तो करंट की दिशा इस वाली उंगली से शो की जाती है। मान लीजिए करंट इधर से इधर जा रही है ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले में करंट क्यू से आर जा रही है ना, तो ये ऐसे बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बनानी है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर की तरफ है ना। तो किसी भी समय अगर मान लीजिए 90 डिग्री पे भी रहे या कुछ भी रहे, मान लीजिए अगर करंट ये आपकी तरफ लूप घूम के ऐसे चौकोर हो जाए इस तरह आपकी तरफ 90 डिग्री, तो मेरा करंट ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा, फोर्स ऊपर, यानी इस केस में फोर्स क्यू आर ऊपर, और ठीक नीचे वाले के लिए फोर्स, ये जो फोर्स पी एस है ये नीचे रहेगा। ये क्यू आर और पी एस ठीक एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट टाइप दिख रहे हैं, एक दूसरे के एकदम 180 डिग्री पे, यानी हर बार चाहे जितना भी एंगल रहे, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड के जो फोर्सेस हैं दैट विल बी डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर एंड देयर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल। So these two forces which is generated due to upper wire and lower wire will be cancelled, but this wire and this wire, this will contribute to the force। तो यहाँ पे अब देखिए फोर्स क्या है, यहाँ एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, यहाँ एक प्लेन के अंदर चल रही है, एक प्लेन के बाहर। जब ऐसे घूम के आएगी तो ये जैसे कार की स्टीयरिंग में हम अपने हाथों से फोर्स लगाते हैं, एक अपोजिट दूसरा उसके अपोजिट, ठीक है, तो एक टॉर्क क्रिएट करता है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर और दोनों के बीच में दूरी, ठीक है ना, यही तो टॉर्क क्रिएट करता है। तो यहाँ एक टॉर्क क्रिएट होगा, किनके फोर्सेस के कारण, इन फोर्स और इन फोर्स के कारण, ठीक है ना। तो अब इसी टॉर्क को हम मैथमेटिकली लिख लेंगे सभी कुछ। तो देखिए सभी कुछ लिख देते हैं। कंसीडर a rectangular loop PQRS, all right, having current I side A B, A is equals to A into B is equals to area of the coil, ये हमने मान लिया, ठीक है ना, ये हमने अपने से मान लिया। नाउ थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ B एंड नॉर्मल टू द प्लेन N, ठीक है ना, ये इसको आप ऐसे मान लीजिए। सो फोर्सेस ड्यू टू QR and PS will be directed opposite to each other and cancel each other। Forces FPQ and FRS will create a torque, ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो टॉर्क कितना होगा यही हमारा कैलकुलेशन है। सो टॉर्क टाउ विल बी वन फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स, क्योंकि दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम में है, कोई एक फोर्स ले लीजिए, इक्वल और अपोजिट फोर्स जब काम करती है कुछ दूरी पे तो यही टॉर्क क्रिएट करता है, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही काम होता है। सो टॉर्क टाउ विल बी फोर्सेस आई लेंथ एंड बी, आई एल बी, देखिए लंबाई कितनी है तार की, बी,
करंट आई और मैग्नेटिक फील्ड बी, लेकिन आप देखिए साइन थीटा जो फोर्स और इसके बीच का एंगल था ये हमेशा 90 डिग्री है ना, तो आई एल बी साइन थीटा में साइन 90 रख देंगे, तो आई बी बी साइन मतलब थीटा नहीं, यहाँ पे थीटा एंगल तो हमने दूसरा रिप्रेजेंट किया है, साइन बी बी ये, और साइन इसको आप कह दीजिए 90 डिग्री है फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। और ये बी क्या है, लंबाई है तार की, ये कैपिटल बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, जो करंट बह रही है। आई एल बी साइन थीटा से लेंथ की जगह स्मॉल बी यूज़ किया है, और साइन 90 डिग्री क्योंकि फोर्स और कैपिटल बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अब देखिए यहाँ पे किसी भी समय अगर मैं इसको दूसरे फिगर फॉर्म में बनाऊँ, जैसा कि इसमें काम करना चाहिए था, लूप बनना चाहिए, तो देखिए एक फोर्स ये लग रहा है एफ पी क्यू, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी है कुछ, ये दूरी नीचे वाला जो विड्थ वाला डिस्टेंस है दैट इज़ ए, और ये एक फोर्स लग रहा है इस तरह का डाउनवर्ड एफ, जिसको हम कह रहे हैं आर एस। इनके दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, बस इनके डायरेक्शन अपोजिट, और ये दूरी पे काम कर रहे हैं कुछ। तो अब देखिए अगर इनका हमें टॉर्क निकालना है तो एक दूसरे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये लेंथ है ए और ये एंगल हो गया थीटा। अब जब चूँकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो गया थीटा, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, वो नॉर्मल के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दैट इज़ थीटा। और जब ये थीटा एंगल है तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए, ये हाइपोटेनस ए हो गई, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये, तो ये होगा ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इसको ए साइन थीटा लिख दें। ये इसको आप कह सकते हैं ये टॉप व्यू है इसी वाले का, इसी को जब हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसे ही पाते हैं कि एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऊपर, और उसको बीच का लेंथ क्या है, ये ए। तो अब ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया आई बी, देखो स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी को हमने टोटल एरिया ऑफ द लूप कह दिया, तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, साइन थीटा, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखिए अगर मान लीजिए इस तरह के, ये तो एक टर्न के लिए, फॉर इस तरह के अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स होते, फॉर n टर्न्स क्या हो जाता, केवल टॉर्क में n मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ टॉर्क्स क्रिएट होंगे और सभी की डायरेक्शन सेम होगी, दैट विल बी एन आई ए बी साइन थीटा। अब देखिए ये मान लीजिए इफ m इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, m जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन आई ए, ठीक है ना, तो n एक का और i इंटू ए, तो m की वैल्यू हम लिख लेते हैं अलग से, m इज इक्वल्स टू एन आई ए, ठीक है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा जहाँ n टर्न्स के लिए है ये, तो टाउ कितना हो जाएगा, एन आई ए की जगह m रख दिया, b हो गया साइन थीटा, तो ये हो गया एम बी साइन थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा है और m मैग्नेटिक मूवमेंट है जो कि लूप करंट लूप के कारण जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो इसकी अपनी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर वाली, जो प्लेन के परपेंडिकुलर, और b की मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के बीच का एंगल तो थीटा है ही, m की वही डायरेक्शन होगी जो कैपिटल N की डायरेक्शन होगी, तो ये हो जाएगा टाउ। इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट m क्रॉस b, तो टाउ इज इक्वल्स टू m क्रॉस b भी एक एक्सप्रेशन होता है, और टाउ इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा भी एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऐसा होता है जैसे कि अगर मान लीजिए ये रोटेशन इसका अगर क्लॉकवाइज है तो ये जो है लूप क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तब ये टाउ जो है ये एक्सिस की डायरेक्शन होगा, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं टाउ इज सच दैट इट रोटेट्स द लूप clockwise about axis of rotation, तो ये टाउ हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा एक्सप्रेशन टॉर्क का, जो कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप रखा होता है तो उस पर कितना टॉर्क काम करता है। थैंक यू।